हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों हम आज बात करेंगे आईसी इंजन एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके एग्जामिनेशंस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि एन इग्निशन कॉयल इन द स्पार्क इग्निशन इंजन सप्लाइज डैश वोल्टेज टू द स्पार्क प्लग। क्या होगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन ये इज़ द हाई, यानी कि an ignition coil in the spark ignition engine supplies high voltage to the spark plug. Next, the voltage required to produce a spark across the gap between the sparking point is कितना होगा? The voltage required to produce a spark across the gap between the sparking points is राइट हो जाएगा इसका सी, यानी 6000 से लेकर 10,000 वोल्ट्स। कितना होगा? 6000 से लेकर 10,000 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 कह रहा है कि जो सुपर चार्जिंग इज द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग द इनटेक एयर टू द इंजन सिलेंडर एट अ डेंसिटी डैश द डेंसिटी ऑफ सराउंडिंग एटमॉस्फेयर। आपको बताना है कि सुपर चार्जिंग इज द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग the intake air in the engine cylinder at a density dash the density of the surrounding atmosphere। तो कितना होगा? राइट आंसर का सी, यानी ग्रेटर देन। सुपर चार्जिंग इज द प्रोसेस सप्लाइंग द इंटेक एयर टू द इंजन सिलेंडर एट द डेंसिटी greater than the density of surrounding the atmosphere। The next question is the increase in intake temperature of internal combustion engine will be dash efficiency। The increase in intake temperature of internal combustion engine will dash efficiency। The right answer is C, decrease। The increase in intake temperature of internal combustion engine will decrease efficiency। Next, the function of a distributor in a coil ignition system of IC engine is right आंसर आएगा इसका D, to time the spark। The function of a distributor in a coil ignition system of IC engine is to time the spark। Next, supercharged engine as compared to an ordinary engine। The supercharged engine as compared to ordinary engine, the right answer is D, all of these, यानी requires small foundation, B is the lighter, C is the consume less lubricating oil। A supercharged engine as compared to ordinary engine are all of these, right answer is that is requires small foundation, is lighter, consume less lubricating oil। The next is supercharging is dash the power developed by the engine। The right answer is B, increases। Supercharging increases the power developed by the engine। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन में आगे कह रहा है क्वेश्चन कि एक सुपरचार्जर रिसीव्स एयर फ्रॉम surrounding the engine। Supercharger receives air from the surrounding the engine, compress it to a higher pressure and then feed it into the inlet valve of the engine। आपको बताना है कि स्टेटमेंट जो है ये आपका राइट है या रॉन्ग है, ये आपको स्टेटमेंट बताना है। तो दिस स्टेटमेंट इज़ राइट, यानी एक सुपरचार्जर रिसीव करता है एयर फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक सराउंडिंग द इंजन और कंप्रेस करता है इट टू बी हाई प्रेशर and then feed it into the inlet valve of the engine। Next is a carburetor is used to supply। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? The right answer is D, that is petrol and air। Carburetor is used to supply petrol and air। Next, a diesel engine is dash compared to petrol engine, both running at rated load। A diesel engine is dash as compared to petrol engine, both running at rated load। What is the right answer is? The right answer is C, that is more efficient। A diesel engine is
more efficient as compared to petrol engine, both running at the rated load. Next, the firing order in an IC engine depends upon firing order in an IC engine depends करता है किस पर? सही आंसर हो जाएगा इसका डी, यानी ऑल ऑफ दीज डिपेंड्स करता है उसके अरेंजमेंट ऑफ सिलेंडर्स पर, डिज़ाइन ऑफ क्रैंक शाफ्ट पर, नंबर ऑफ सिलेंडर्स. द राइट आंसर इज डी, ऑल ऑफ दीज. द नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि द कंपनसेटिंग जेट इन अ कार्बोरेटर सप्लाइज ऑलमोस्ट कांस्टेंट अमाउंट ऑफ पेट्रोल एट ऑल स्पीड बिकॉज द राइट आंसर आएगा डी, जो कि फ्लो इज प्रोड्यूस ड्यू टू द स्टैटिक हेड इन द फ्लोट चैम्बर. फ्लो क्वेश्चन ये कह रहा है कि द कंपनसेटिंग जेट इन अ कार्बोरेटर सप्लाइज ऑलमोस्ट constant amount of petrol at all speed because the flow is produced due to the static head in the float chamber. नेक्स्ट आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट. राइट आंसर इज डी, दैट इज ऑल ऑफ द स्टेटमेंट करेक्ट है. यानी कंप्रेशन रेशियो पेट्रोल इंजन का 6:10 होता है. हायर कंप्रेशन रेशियो in diesel engine result in higher pressure and petrol engine work on Otto cycle. These are all the statements are correct. The next question is lubrication in IC engine dissipate करता है heat generated from the moving parts due to friction. Lubrication in IC engine dissipates करता है heat generated from the moving parts due to friction. What is the right answer is? The right answer is A, यानी ट्रू. lubrication in IC engine dissipate करता है heat generated from the moving parts due to friction is right answer is true. Next, spark ignition engine are governed by. Spark ignition engine is governed by. The right answer is C, qualitative governing. क्या होगा राइट आंसर इसका? क्वालिटी. स्पार्क इग्निशन इंजन जो होगा वो गवर्न बाई, स्पार्क इग्निशन इंजन इज गवर्न बाई क्वांटिटेटिव गवर्निंग. क्या होगा इसका आंसर? क्वांटिटेटिव गवर्निंग. नेक्स्ट, द कंप्रेशन इग्निशन इंजन्स आर गवर्न बाई. वो बताना है कि द कंप्रेशन इग्निशन इंजन आर गवर्न बाई. कंप्रेशन इग्निशन इंजन जो होता है वो गवर्न बाय. उसका राइट आंसर क्या होगा? व्हाट इज द राइट आंसर इज? द राइट आंसर इज बी, दैट इज योर क्वालिटेटिव गवर्नर. यानी स्पार्क इग्निशन इंजन जो होगा वो क्वांटिटेटिव गवर्निंग होगा, जबकि कंप्रेशन इग्निशन इंजन जो होगा वो क्वालिटेटिव गवर्निंग होगा. यानी कंप्रेशन इंजन की बात करेंगे तो वो क्वालिटेटिव होगा और स्पार्क की बात करेंगे तो वो क्वांटिटेटिव होगा. नेक्स्ट बात करते हैं. Next, the air fuel ratio of petrol engine is controlled by. Air fuel ratio of petrol engine is controlled by. कैसे होगा? The right answer is A, that is your carburetor. Air fuel ratio of the petrol engine is controlled by carburetor. किसके थ्रू होगा? कार्बोरेटर के थ्रू होगा. इस एयर फ्यूल रेशियो ऑफ द पेट्रोल इंजन इज कंट्रोल्ड बाय carburetor. Next, heat and mass governing, the fuel supply is cut off completely during one or more number of cycle. What is the right answer होगा यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है कि हिट एंड मिस गवर्निंग द फ्यूल सप्लाई इज कट ऑफ completely during one or more number of cycle. What is the right answer is A, yes. Hit and miss governing the fuel supply is cut off completely during one or more number of cycle. The right answer is yes. Next, in qualitative governing, the quantity of fuel is varied to suit the load on the engine and the total charge of air is altered. What is the right answer is? The right answer is B, that is incorrect. Next, the correct mixture strength for petrol is about. आपको बताना है कि करेक्ट
मिक्सचर जो होगा पेट्रोल इंजन का वो क्या होगा, दैट इज़ 14:6:1. द करेक्ट मिक्सचर स्ट्रेंथ बाय वेट फॉर पेट्रोल इज़ अबाउट 14.6 as to 1 ratio. 14.6 as to 1 ratio is the correct mixture strength for petrol is 14:6:1. Next is high speed compression engine operates on. high speed compression engine operates होता है C ड्यूल कंबशन साइकिल पर. किस पर होगा, ड्यूल कंबशन साइकिल पर हाई स्पीड इंजन जो होता है वो ऑपरेट करता है. नेक्स्ट, अ स्पार्क प्लग गैप इज़ केप्ट फ्रॉम. स्पार्क प्लग गैप जो होता है वो मिलता है, कितना होता है स्पार्क प्लग गैप 92 का ए, दैट इज़ 0.3 से लेकर 0.7 mm के बीच में होगा. कितना होगा, 0.3 से लेकर 0.7 mm के बीच में स्पार्क प्लग का गैप होता है. नेक्स्ट, द सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेट्रोल इज़ डैश एज़ कम्पेयर टू डीजल ऑयल. आपको बताना है कि जो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर होता है पेट्रोल का वो क्या सेम होगा, लोअर होगा या हायर होगा, ये आपको बताना है. तो इसका हो जाएगा हायर, यानी सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेट्रोल का इज़ हायर एज़ कम्पेयर टू डीजल ऑयल. नेक्स्ट, द इंजेक्शन प्रेशर इन अ डीजल इंजन इज़ अबाउट. आपको बताना है कि इंजेक्शन प्रेशर इन डीजल इंजन का वो कितना होता है. वो राइट आंसर जाएगा इसका बी 100 बार, यानी 100 बार जो होगा इंजेक्शन प्रेशर डीजल इंजन का वो होगा 100 बार. नेक्स्ट, द लाउड पल्सेटिंग नॉइज हियर्ड विद इन द सिलेंडर ऑफ एन आईसी इंजन इज़ एज. वो कितना होता है, द राइट आंसर इज़ ए, दैट इज़ योर डेटोनेशन. क्या होगा, DET, डेटोनेशन. The loud pulsating noise heard within the cylinder of an internal combustion engine is as a detonation. Next, detonation is called knocking या पिंकिंग. आपको बताना है कि डिटोनेशन जो होता है वो क्या कहलाता है, नॉकिंग कहलाता है या पिंकिंग कहलाता है. तो राइट आंसर हो जाएगा इसका यस, डिटोनेशन इज ऑल्सो कॉल्ड अ नॉकिंग या पिंकिंग. दोनों ही कहलाता है, चाहे आप उसको नॉकिंग बोले या आप उसको पिंकनिंग बोले, दोनों ही क्या कहलाएंगे, डिटोनेशन का मतलब होता है. नेक्स्ट, जो नॉकिंग टेंडेंसी होती है स्पार्क इग्निशन इंजन की वो मे बी डिक्रीज बाय. क्यों डिक्रीज़ हो जाती है ये आपको बताना है, डी, क्योंकि रिड्यूसिंग द कंप्रेशन रेशियो, इसलिए नॉकिंग टेंडेंसी जो होती है स्पार्क इग्निशन इंजन की वो डिक्रीज़ हो जाती है. नेक्स्ट, जो नॉकिंग होती है इन डीजल इंजन की वो मे बी प्रिवेंट बाय. क्यों प्रिवेंट होती है ये आपको बताना है. 98 का डी, ऑल ऑफ दीज. नॉकिंग जो होती है डीजल इंजन की प्रिवेंट होती है बाय रिड्यूसिंग द डिले पीरियड, रेजिंग द कंप्रेशन रेशियो, इंक्रीज द इनलेट प्रेशर ऑफ एयर. नेक्स्ट, in order to prevent knocking in a spark ignition engine, the charge away from the spark should be. कितना होगा आपको बताना है कि in order to prevent knocking the charge away from the spark, all of these, यानी low density, low temperature, long ignition delay. Next, the probability of knocking in diesel engine is increased by. The probability of knocking in diesel engine is increased by. The right answer is D, that is all of these. यानी जो प्रोबेबिलिटी होती है नॉकिंग की इन डीजल इंजन की वो होगी हाई सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर, लो वोलेटिलिटी और हाई विस्कोसिटी. यानी राइट आंसर आएगा डी, दैट इज़ योर ऑल ऑफ दीज. एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉकिंग इन डीजल इंजन इज इंक्रीज्ड बाय हाई सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर, लो वोलेटिलिटी और हायर विस्कोसिटी. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग.